ये प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। अगर आप लेंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये होता है एक डायनामिक प्रोसेस। मीन्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेज। सो केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज, इस पूरी केमिस्ट्री में इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ डायनामिक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंजेस, we can simply say. So in 11th class you have gone through little bit of this topic, that how electrochemistry play a very important role in generation of electricity by using redox reaction. So here you are looking this picture. In this picture we are taking here two beakers, two containers, and in this container here we are taking a zinc rod, and here it is copper rod, and whole of the device is known as, it is known as electrochemical cell. We can say it is electrochemical cell. इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, जिसमें हम लोग जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं और रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, या हम वोल्टेइक सेल भी कह सकते हैं, या डेनियल सेल भी कह सकते हैं, डेनियल सेल। इसमें आप देख रहे हैं इस पूरे डायग्राम में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जिंक और राइट साइड में कॉपर। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, a solution of zinc salt, aqua solution of zinc salt, and here we are taking aqua solution of copper salt. So we can take here that it is a copper sulfate solution, and here we are taking here a zinc sulfate solution, zinc sulfate solution. So, and this is a copper electrode, and this is here, this copper electrode here, it is negatively charged. This is negatively charged, it is having negative charge, so it is known as cathode. Here it is negative, it is known as anode, and here it is positively charged, so it is known here as cathode. So what happened in this reaction? Again we will check. This is a device, it is known as galvanic cell or voltaic cell or Daniell cell, and it is electrochemical cell. Electrochemical cell means which convert chemical energy into electrical energy. A device which convert chemical energy into electrical energy. Simply we can write it. Look here. A device, it is a device, which convert chemical energy into electrical energy.
So how this chemical energy changing to electrical energy we will discuss here. So look here, this is again we will discuss this galvanic cell on right hand side. In this left hand side, and this is right hand side. So student, we are taking two rods. In right hand side we are taking copper rod, in left hand side we are taking zinc rod, and copper is less reactive than zinc. In electrochemical series or in reactivity series, zinc is more reactive than copper. So this is a couple of two half cell. This is a complete cell, and both the electrode are joined through a wire to complete the circuit. And here we can use electrical appliance like small bulb or voltmeter through which current will pass. So this wire is completing outer circuit, and this is a U-tube. This is U-tube, and this U-tube is known as salt bridge. This is salt bridge, and this salt bridge contain a solution, a paste of neutral salt. Neutral salt means a salt of a strong acid and a strong base, like sodium nitrate here. So when this circuit, we will insert this salt bridge, then circuit will get completed and current will start to flow in this cell. Again, here we will take zinc sulfate on left hand side. On right hand side we will take here copper sulfate solution, a less active metallic salt on right hand side, a more active metallic salt on left hand side, and a metal, more active metal will be used as anode, and less active metal will be used as cathode. So student, here at anode, what happen at anode, we can discuss. So here what is the full form of anode, or we can remember that how reaction is taking place at anode and cathode. Simply we can take anode, A N O D E. So we can learn it A for anode, and N for negative charge, and this O4 we can take here oxidation, and student D for DE means removal, like dehydration, and E for of electrons. So simply we can learn what is anode here. Anode, a metallic rod, electrode at which is negatively charged, at which oxidation is taking place. So how reaction will take place here at anode? We are having zinc, this zinc solid, and it will lose 2 electron, will go to solution, will come in aqueous form by losing 2 electrons. So what is happening here? It is oxidation. So this is
oxidation, this is a reaction of oxidation. What is happening? Oxidation reaction taking place here, and here zinc will lose electron. This is zinc metal, and zinc will lose electron by giving up electron behind. It will leaving behind the electron. Zinc will go to solution, so zinc rod become negative charge. यहाँ पर जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जिंक सॉल्यूशन में चला जाएगा और जिंक मेटल हमारी ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी बच्चों। ये पूरी जो जिंक मेटल निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो एनोड क्या है? एनोड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, एनोड एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। हमेशा याद रखिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो रहे हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब कैथोड क्या होगा? कैथोड इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो कैथोड की रिएक्शन होगी बच्चों वो होगी Cu। यहाँ सॉल्यूशन में से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से जो कॉपर है ये कॉपर सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक कॉपर एटम इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और ये चेंज हो जाएगा Cu सॉलिड में। ये Cu सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे ये बन जाएगा बच्चों क्या? एक रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस टाइप से जब ओवरऑल रिएक्शन आप लिखेंगे इसमें तो क्या आएगा इसमें चेंज? यहाँ पर तो बच्चों ये इस टाइप से हम इसको पूरी रिएक्शन को लिख सकते हैं कि हमारी एट एनोड, यहाँ पर एट एनोड कौन सी रिएक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा इसमें, ये जो जिंक मेटल है ये हमारी सॉल्यूशन में चली जाएगी और ये इस पर चार्ज आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड की रिएक्शन होगी। एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे हमेशा यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो कॉपर जो लेस एक्टिव मेटल है वो सॉल्यूशन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे यहाँ पर रोड से और ये इसके ऊपर सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हमारी होगी बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे तो हमारी रिएक्शन बनेगी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस इज इक्वल टू जिंक हमारा जो सॉलिड है वो एक्वस फॉर्म में आ गया, सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया। तो इसमें होगा क्या? यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ जितने भी कॉपर आयन सॉल्यूशन में होंगे बच्चों वो सब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो पूरी रोड है ये स्वेल अप कर जाएगी, रोड पे इस पर कॉपर मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा और जिंक यहाँ से धीरे डीके हो जाएगी, बिल्कुल जिंक ख़त्म हो जाएगा, जिंक पूरा का पूरा डिजोल्व होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा। और इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके ये इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के इधर आ जाएंगे और यहाँ से आपका ये इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट होगा। इस तरह से ये करंट का इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जनरेशन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है यहाँ पर? जो सॉल्ट ब्रिज है, एक तो इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट। क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जो है ये एक सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या हुआ? इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट। जैसा आप देखते हैं कि हमें अगर बल्ब जलाना है या कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना है तो उसमें 2 वायर होते हैं,
तो यहाँ पर भी 2 वायर, एक कह सकते हैं ये फेस का वायर हो गया, ये न्यूट्रल का वायर हो गया। तो जब 2 वायर आपस में ज्वाइन करेंगे तो सर्किट को कंप्लीट करेंगे। इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट। और दूसरा जो रोल है इसका, ये डीपोलराइजर का काम करता है। डीपोलराइजर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब यहाँ से इस सॉल्यूशन में से, इसमें से यहाँ से सॉल्यूशन में से कॉपर यहाँ आएंगे तो अपने आसपास यहाँ पर सल्फेट का जो आयन्स है, उन सल्फेट का आयन को यहाँ पर छोड़ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इस रोड के चारों तरफ जो है यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा बच्चों। इस रोड के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। और सिमिलरली जब जिंक आयन यहाँ से इधर जाएंगे तो जिंक आयन जो है वो इसमें यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर देंगे। तो इस तरह से रोड जो हमारी ये पोलराइज होगी, रोड पर नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग, रोड हमारी पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसका क्या हो गया कि पोलैरिटी आ गई। तो इससे क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर रिडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज इकट्ठा हो गया। तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा ये सोडियम। आप देख रहे हैं सोडियम इधर जा रहा, और पॉजिटिव चार्ज को बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज को जो इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, इसको ये नेगेटिव। तो इस तरह से इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जो पोलैरिटी आ गई है, विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, विच प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। तो इट एक्ट एज डीपोलराइजर। सेकेंडली व्हाट हैपन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड लिसन केयरफुली, that when this rod become positive charge with respect to solution, this rod is positively charged with respect to solution, and this rod, this zinc anode is negatively charged with respect to this solution. So there is 2 pole, plus and minus charge. So what happen, a potential difference will set up at this rod, and that potential difference is known as electrode potential. So what is the definition of electrode potential? When a metallic rod in a cell is kept immersed in its salt solution, then this metallic rod become positive charge with respect to solution or negative charge with respect to solution, and hence a potential difference will set up between electrode and solution. This is known as electrode potential. This is the definition of electrode potential, and the symbol of electrode potential is, this is known as electrode potential. What is the symbol of electrode potential here? Electrode potential, it is known as electrode potential. Electrode potential potential. So what is the definition of electrode potential? When a metallic rod in a cell, and this is a complete cell, and this half portion, this is half cell. So this is cathode, and this is anode. So when metallic rod dipped in a kept immersed in a salt solution, then metallic rod become either positive charge or negative charge with respect to solution, and hence a potential difference set up between solution and electrode, that is known as electrode potential. So its standard value is known as E node for zinc. This is reduction potential, sometimes it written as oxidized form or reduced form, or you can write it like oxidation potential, reduction potential, reduced form divided by oxidized form, this one. So this is known as electrode potential for zinc, or for zinc half cell. Zinc electrode.
So we can use this symbol here. This is reduction potential and this is the symbol of oxidation potential. So generally we use this reduction potential. So we can say that this is reduction potential of anode. Reduction potential of anode. And E node standard, this is standard value, and reduction potential of copper half cell, and this is known as reduction potential standard value potential of cathode, or electric potential of cathode and electric potential of anode. And here we can find out the value of these two potential by using a reference cell. And we will discuss here EMF. EMF means electrode potential of cell, electrode potential of cell at two different values. So another term we will take here, cell potential of cell, and cell potential of this cell, and at non-standard condition, or EMF of the cell. So EMF of cell or cell potential of cell, it is equal to reduction potential of cathode. Reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Or simply we can write E cell is equal to E for right side minus E for left side. Like here, electrode potential of reduction potential of cathode, here copper, so we can write also it in another form, reduction potential of copper. We will subscript it like this, minus reduction potential of zinc. So this is E cell or EMF of cell. Now what is EMF, student? Look here. What is the definition? When no current is drawn from the cell. When no current is drawn from the cell means any resistor or any electric appliance is not connected. There is no potential drop. There is no potential drop. Current is not flowing, and under that condition, the maximum potential of the cell is known as EMF of the cell. What is the definition of the cell? When no current is drawn from the cell, then the maximum potential of cell is known as EMF of the cell. Means no electrical appliance is connected, no resistor is connected, no bulb is connected, there is no potential drop. Remember. So in physics also, you know that E is equal to V plus IR, where I is the current and R this is a potential drop, or V is equal to, so E is equal to maximum value, and this is potential difference, this is EMF. So potential difference V is equal to E minus IR, where R is internal resistance of the circuit. Somewhere it is used as small r. So I is the current drawn from the circuit. So at that condition, when current is drawn from the circuit, then maximum potential is known as potential difference, and when no current is drawn, then that is known as EMF of the cell. So here let us know how to find out the value of this. Now we'll discuss here another term, standard electrode potential.
standard electrode potential of the half cell, that is E node cell. This is standard electrode potential of the complete cell, that is known as potential difference. It is known as potential difference. And for cathode, standard electrode potential of cathode, here we will write its symbol standard electrode potential, this one for cathode, and standard electrode potential for anode, it will be this one here. And in a electrochemical series, experimentally this value have been found out, that is it is minus 0.76 volt, means reduction potential of this zinc electrode or this anode here, it is minus 0.76 volt. And for copper, if you will go through the electrochemical series given in your book, it is plus 0.34 volt. So again, what is the definition of this electrode standard potential? We have gone through the definition in 11th class. Standard electrode potential of cathode or standard electrode potential of anode, we can define that when a metallic rod is dipped, like copper or zinc is dipped in its salt solution, then this metallic rod become either positively charged or negatively charged with respect to the solution. Okay, and a potential difference set up between this rod and this solution, that potential difference is known as simple cell potential or electrode potential. Okay, but when this solution is having some standard value, means when this solution is having a concentration of 1 molarity, this is 1 molar solution, and temperature is standard 298 Kelvin temperature. Student, remember that is 25 degrees Celsius. So this is the standard temperature for solution, STP, standard temperature value for solution, it is 25 degrees Celsius, and standard temperature for a gas, it is 0 degrees Celsius, that is 273 Kelvin. But so for solution is 25 degrees Celsius, remember 298. So at 298 Kelvin temperature, when a metallic rod is dipped in 1 molar solution of its salt, then the potential difference under that condition is known as standard electrode potential. If condition are not given, means molarity is not given, concentration of solution is not given, temperature is not given, conditions are unknown, under that condition, that's simply known as electrode potential. But if conditions are standard means known, specific, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसकी वैल्यू को हम जानते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, जिसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं हम लोग. तो यहाँ पर ये बच्चों 1 मोलर सॉल्यूशन और टेम्परेचर 298 केल्विन लेंगे, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ये सिंबल किसका है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड. तो ये वैल्यू कितनी है इसकी? जिंक की है -0.76 वोल्ट और कॉपर की है +0.34 वोल्ट. तो अगर हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाले सेल का, तो ई सेल हो जाएगा आपका कितना? ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट. रिमेंबर, राइट में हमेशा लेस रिएक्टिव होगा. जो हमने सेल बनाया बच्चों, अगर आपने सेल को बनाने में उल्टा कर दिया तो सेल विल नॉट वर्क, सेल काम नहीं करेगा. हमेशा जब सेल बना रहे हैं 2 मेटल लेंगे, तो जो मेटल हमारी लेस रिएक्टिव है उसको हम राइट साइड में लेंगे, और जो मेटल हमारी मोर रिएक्टिव है उसको हम हमेशा किस में? लेफ्ट साइड में लेंगे, राइट साइड.
बच्चों जो मेटल हमारी मोर एक्टिव है उसको हम कहाँ लेंगे, लेफ्ट साइड में। आप जो सामने बैठे पेपर के, आपके लेफ्ट साइड में पेपर पे होगा और राइट साइड में हमारे ये होगा, तो हमेशा होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.1 वोल्ट। अगर ये वैल्यू बच्चों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ये अगर पॉजिटिव आ रही है तो सेल हमारा वर्क करेगा, मीन्स रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगर हम सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दें, जैसे आपके घर में बैटरी है, अगर उसके टर्मिनल को नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में कर देंगे तो करंट विल नॉट फ्लो, क्योंकि जो हमारे रिएक्शंस है वो उसमें नहीं हो रही है। मीन्स कैथोड पे हमारे क्या होना है यहाँ पर रिडक्शन, और एनोड पे हमारे ऑक्सीडेशन हो रहा, तो वो नहीं होगा, मीन्स रिएक्शन हमारी उल्टी हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका जो है जो सेल का नोटेशन है, आप ये देख रहे हैं इस सेल के लिए, इस सेल के लिए ये सेल का नोटेशन हुआ है, ये जिंक, जिंक की रॉड डिप्ड इन जिंक सॉल्यूशन। फिर ये दो हमारे देख रहे हैं, दो लाइन हमने वर्टिकल लाइन बनाई है, ये सॉल्ट ब्रिज को शो करती है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। तो कॉपर के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड और जिंक के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड, तो जिंक डिप्ड इन कॉपर, जिंक डिप्ड इन जिंक सॉल्यूशन, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सॉल्यूशन। तो ये सेल का सिंबल है, ये सेल की नोटेशन है, सेल का लिखने का तरीका है। कॉपर जिंक सेल को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ जिंक है, जिंक की रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये जिंक की रॉड डिप्ड इन जिंक सॉल्यूशन, और यहाँ पर कॉपर की रॉड डिप्ड इन कॉपर सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट है एक्वस, और यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 मोल और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ऐसे हम शो करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, और ये किसका रोल प्ले करता है, ये सॉल्ट ब्रिज। अब जैसे एक सेल रिएक्शन लेते हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं, सेल रिएक्शन हमारे पास ये है, कॉपर प्लस सिल्वर इज इक्वल टू कॉपर प्लस सिल्वर, कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर सोल्यूशन, फिर कॉपर सोल्यूशन सिल्वर सॉलिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, और सिल्वर का रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर जो हमारी ये मोर रिएक्टिव हुआ, तो कॉपर हमारा क्या हो गया, ये एनोड, और सिल्वर जो हमारा ये हो जाएगा कैथोड। तो इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, ये कॉपर सॉलिड कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सॉल्यूशन, और यहाँ सिल्वर रॉड डिप्ड इन सिल्वर सॉल्यूशन, और ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। और जो इस सॉल्यूशन का जो ये कॉपर का आयनिक फॉर्म लिखा है, कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन है, ये इसकी मोलरिटी होगी। तो ऐसे हम सेल की नोटेशन शो करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है सेल की नोटेशन, सेल की रिएक्शन। सेल की नोटेशन दिया तो रिएक्शन लिखना है। हाफ रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं, हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, देखिए ये जो एक कंप्लीट सेल दिया है, इस कंप्लीट सेल के लिए आपसे पूछा जा सकता है राइट सेल रिएक्शन, राइट सेल रिएक्शन और राइट हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन या राइट रिएक्शन ऑफ, और राइट रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन होगी, सीधा सीधा कैसे लिखने का तरीका देखो बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, इससे ये बनाना है, ठीक है, और इससे ये बनाना, सीधा चलना आपको, सीधा आप लेफ्ट टू राइट चलिए। तो हमारी देख रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक टर्मिनल पर हो जाएगी जिंक से, सीधा सीधा में जिंक बना देना है, जिंक हमारा एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, और दूसरे टर्मिनल पे हमारा है कॉपर, शीशा बन जाएगा कॉपर में। ये रिएक्शन है। अब इसमें क्या रह गया आपका लिखना, आपको इलेक्ट्रॉन, बस ये दो रिएक्शन एक्चुअल में सीधा सीधा जो सेल दिया है, इससे ये बना देना और इससे ये बना देना है, मीन सीधे लेफ्ट से राइट की तरफ आपको बढ़ते जाना, बनाते जाइए। अब देखो इसमें यहाँ क्या होगा, जिंक ने क्या किया, ये प्लस चार्ज होगा तो इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इधर से माइनस हो गए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए। ये तो हमारी रिएक्शन किसकी होगी, ऑक्सीडेशन हो रहा
तो किस पे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। अगर आप भी भूल जाएं कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड की कैथोड की होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड की कैथोड की होगी, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है वो केवल रिएक्टेंट में देखेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ पर ना लिख करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन होगी हमारी, ये किसकी होगी, ये कैथोड की होगी। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनोड की रिएक्शन कौन सी है, कैथोड की रिएक्शन कौन सी है। तो मैंने बताया जिसमें ऑक्सीडेशन हो, जिसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए चार्ज 0 है, यहाँ पर चार्ज +2 हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। जिसमें चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ चार्ज +2 है बच्चों, और यहाँ चार्ज 0 हो गया तो ये रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे, और रिडक्शन, अब दोनों को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल करके, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी।